today I will solve the some questions from AS12. Okay, already in the screen questions are. I've already sent the PDF of these questions. Okay. First question number 1. Alps Limited has received the following grant for the government during the year ended 31st March 2021. 120 lakhs received as subsidy from central government for setting up an industrial undertaking in Medak, a notified backward area. As per AS12, any subsidy received to establish industrial undertaking in a backward area is not regarded as government grant. ठीक है, अगर this is grant is related to establishment of industrial area in a backward area, this grant is not regarded as government grant for AS12. क्वेश्चन हम दे देंगे, प्रिंट आउट निकाल लो. ठीक है, ओके. आंसर आप लिखते जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर हो गया ये. राइट द आंसर. क्वेश्चन ऑलरेडी PDF हम सेंड कर दिए हैं. प्रिंट आउट भी दे देंगे. ठीक है, और न्यू सिलेबस वाले बुक में ये ऑलरेडी है. आप जो क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं. पीछे में पेज नंबर 293 में निकालिए. न्यू सिलेबस का बुक जिसके पास है उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी है अकाउंट्स के बुक में. पेज नंबर 293 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. 293 नहीं, सॉरी 294 में. एक पेज उलट के देखिएगा. AS12 का क्वेश्चन वहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड. सेकंड, 15 lakh grant received from the central government on installation of efficient treatment plant. ये फर्स्ट का. सेकंड का आंसर हम लोग लिखेंगे. ये ग्रांट जो मिला है, दिस इज ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट ग्रांट. ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड ये ग्रांट है. ठीक है, दिस इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट. AS12. grant received for installation of efficient
सॉरी एफिलुएंट ना, एफिशिएंट, एफिलुएंट, एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, treated as government grant it can be reduced from cost of plant or credited to deferred government grant account. दो ट्रीटमेंट हम लोग कल पढ़े थे लास्ट क्लास में. देयर इज टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आइदर रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्लांट और क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट. तो आपसे केवल ये क्वेश्चन में ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है, बना के आपको देना नहीं है. क्या करना है ये आपसे केवल पूछ रहा है, ठीक है ना. तो ये आंसर इतना ही होगा इसका. Last one, third point. 25 lakh received from state government for providing medical facility to its workmen during the pandemic. This is not treated as government grant. This is relief work. This is relief grant for the relief hai. This is not treated as the government grant. This is grant for the relief during the pandemic. This is not treated as per AS12. This is not treated as government grant. Any government grant received during pandemic is not regarded as गवर्नमेंट ग्रांट. इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. ओके. यस. ना क्वेश्चन नंबर 2. ये नंबरिंग नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में थोड़ा. जस्ट रीड द क्वेश्चन. On 1st April 2016, MAC Limited received a government grant of rupees 60 lakh. April 2016, grant received 60 lakh for acquisition of machinery costing rupees 300 lakh. मशीन का the grant was credited to the cost of the asset. grant को उसने कहाँ क्रेडिट किया? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. Estimated useful life of the machinery is 10 years. Machinery is depreciated at the rate of 10% on WDV basis. Company had to refund the grant in June 19
ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। कंपनी को 2019 में रिफंड करना पड़ा ग्रांट को। हाउ द रिफंड ऑफ द ग्रांट इन डील्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1920। ओके, पास जनरेंटी फॉर द ईयर 1920। आपको केवल एक ही ईयर का जनरेंटी करने बोल रहा है ये, यानी सारा हमें वर्किंग करके पहले निकालना पड़ेगा। ओके, हम लोग रिफंड का लास्ट टॉपिक में पढ़े थे हम लोग। रिफंड में इफ देयर इज एनी रिफंड ऑफ ग्रांट you have to first see what is the recording entry passed by the company on receiving of grant. When the company has received the grant, what is the entry company has recorded in his books of account? In this question they have already given you the instruction that the company has credited the cost of assets on receiving of grant. If cost of assets credited by the amount of grant, this means company reduce the cost of assets with the amount of grant. Okay? एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होने से आपका एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए क्या कम होने का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने ग्रांट के अमाउंट से एसेट्स के कॉस्ट को कम कर दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड हो गया। तो हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग जो है ये था, कंपनी हैज रिड्यूस्ड द cost of asset with the amount of grant, that is rupees 60 lakh. So this means company has charged depreciation. This means company has charged depreciation on machinery rupees 300 minus 60, 240 lakh. Okay? Yes. तो फर्स्ट हम लोग वर्किंग करेंगे कि हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू कितना रिमेनिंग है मशीन का ऑन 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2016 मशीन का वैल्यू 240 लाख आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विद द अमाउंट ऑफ ग्रांट। ओके, बिकॉज कंपनी हैज क्रेडिटेड द ग्रांट in cost of assets account. This means company reduced the value of cost with the amount of grant. Okay, now charge depreciation on 31st March 2017 at the rate of 10% WDV. First year depreciation 24 lakh, this will 216 lakh. Again depreciation will be charged on 31st March 2017 at the rate of 10% written down value 21.6. 21.6. Okay, now find the just a minute, someone join, I think so. No 216 minus 21.6, now it will be 194.4. Again 1 year more depreciation 31st March 2000, this is 18, this one be 19 at the rate of 10% WDV 19.44 minus equal to 174.96. Now this will be written down value as on 31st March 19. At the time of refund of the grant, written down value of the machine will be is 174.96. Now
company has refunded the grant of rupees 60 lakh because company has not fulfilled the some conditions. No, and at the time of refund, grant, the cost of the assets will increase with the amount of refund, because when we company receive the grant, we have deducted the cost. Now at the time of refund, we have to add on. Refund of grant 60 lakh. Now 2,34,96. This is the revised WDB Fixed. after the refund. Now the depreciation will be charged for 2019-20. Depreciation will be charged on this value 2,34,000 at the rate of 10%. 230. 23.16. ओके, Yes. लिखा Yeah. जी दीपक? हाँ सर, लिख लीजिए। ठीक है, वर्किंग समझ में आया ना? रिफंड हम कर रहे हैं 19-20 में, इसीलिए पहले हमको 19-20 का रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ा 31 मार्च 19 को। यहाँ तक का वर्किंग किए पहले, उसके बाद जब रिफंड कर रहा है, चूँकि ये कॉस्ट को घटाया था शुरू में रिफंड ग्रांट से, इसलिए हम रिफंड जब कर रहे हैं वापस कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो वापस 60 लाख ऐड कर दिए, और 60 लाख ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया उस पर अब अगले साल से डिप्रेसिएशन लगना शुरू होगा उस वैल्यू पे। ओके, अब हम लोग जनरल, चूँकि हमसे ये तो वर्किंग हो गया, क्वेश्चन में केवल आपसे जनरल एंट्री पूछा है, ठीक है ना? तो अब जनरल एंट्री हम लोग कर देते हैं। आइए पहले रिफंड ऑफ ग्रांट का एंट्री कर देते हैं हम लोग। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 लाख। Being government grant refunded and plant account debited with the amount of refund। पहला ये रिफंड का एंट्री, दूसरा आपको एंट्री दिखाना होगा डिप्रिसिएशन का, जो करंट ईयर में चार्ज करेंगे 19-20 में। ओके, Yes. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। जेड लिमिटेड हो गया शिवानी, लिख ली? लिख लिया सर। चलो, समझ में आया ना? हाँ सर। ये तुम्हारे ऑलरेडी नोट्स में तुम्हारा क्वेश्चन है, ये सब यस सर है। नोट्स खोलिए ना? हाँ है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3।
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3. जेड लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट 50 lakh which has estimated useful life of 5 years with a salvage value of 5 lakh. On purchase of the asset, government granted it a grant of rupees 10 lakh. Pass the necessary Journal entry in the books of the company for the first 2 years if the grant is deducted from the value of fixed assets. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. सिंपल है. अगर ग्रांट को हम क्रेडिट कर डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट मीन्स व्हाट? ग्रांट अमाउंट क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट्स अकाउंट. उसके लिए आपको 2 जनरल एंट्री पूछ रहा है. फर्स्ट 2 ईयर का जनरल एंट्री पूछ रहा है. सिंपल है, हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. पहले फिक्स एसेट उसने परचेज किया. फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 lakh. नेक्स्ट ग्रांट रिसीव हो रहा है 10 लाख का. अब ये क्रेडिट साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है डिडक्टेड, यानी हमें क्रेडिट करना होगा एसेट्स अकाउंट में ग्रांट को. ओके, ये फर्स्ट एंट्री हो गया हमारा डिप्रिसिएशन. ये हमारा फर्स्ट ईयर में एंट्री हो रहा है. अभी डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे हम लोग. डिप्रिसिएशन का वर्किंग कर लेते हैं. आइए, डिप्रिसिएशन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. कॉस्ट ऑफ एसेट टोटल हमारा था 50 लाख. इसमें से ग्रांट हमें मिल गया 10 लाख का और साल्वेज 5 लाख का था. 40 लाख कॉस्ट बच गया आफ्टर रिड्यूसिंग द ग्रांट एंड 5 लाख इज द साल्वेज वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय life is given in the question 5 year 5 divided by 5. So 40 minus 5 divided by 5, this means 7 lakh per annum. 7 lakh per annum is the amount of depreciation. Now depreciation entry with depreciation account debit to fixed assets 7 lakh. First year entry complete. Second year, in second year we have to pass only depreciation entry. This 3 entry only in the first year. पहला 3 एंट्री जो किए केवल फर्स्ट ईयर में ही होना था. सेकंड ईयर में तो होगा नहीं. सेकंड ईयर में केवल डिप्रिसिएशन का एंट्री आपको करना है. ओनली डिप्रिसिएशन, वो भी सेम अमाउंट से एंट्री बनेगा. फिक्स्ड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 7 lakh. टोटो से क्लियर? Yes. Depreciation is always straight line, no sir, if they don't give. Yeah, if question is silent about the method, we use straight line method.
Okay. In earlier question, they have given that WDV method. WD. Yeah. That's why we use WDV. In this question, they have silent. That's why we use straight line method. Now, question number 4. Z Limited परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेम क्वेश्चन, बस अकाउंटिंग मेथड चेंज करके दूसरा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन पूरा सेम है. देयर इज नो न्यू, ओनली द अकाउंटिंग मेथड इज चेंजेस ऑफ द ग्रांट. Z Limited purchase of fixed asset of rupees 50 lakh which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of rupees 5 lakh. Same question on the purchase of the assets. Government grant it rupees 10 lakh. Pass necessary general entry in the books of the company for the first 2 years if the grant treated as deferred income. Question is same, only the accounting treatment of grant is changes. Now in this question they have treated the grant as a deferred income and you have to pass 2-year journal entry. Question number 4. Fixed assets account debit to bank 50 lakh. Next entry, bank account debit to government grant. क्वेश्चन हम भेज देंगे ऑनलाइन, ठीक है. बारिश बहुत हो रहा है ना. हाँ, तो क्वेश्चन वहीं घर पे बैठ के टेस्ट दे देना ईमानदारी से. ठीक है, समझ गई ना, कुछ गड़बड़ नहीं करना. ठीक है, तो फिर टेस्ट पेपर उसको अभी 9:30 से टेस्ट शुरू होगा, ठीक है. 1 घंटा है अभी. हम क्वेश्चन 9:30 में भेज देंगे पक्का, ठीक है. और फिर तुम लोग आंसर लिख के कॉपी में, ठीक है, हमको स्कैन करके भेज देना. 2 घंटा का टेस्ट है तो 11:40 तक भेज देना. हाँ, 11:40 लास्ट टाइम है. 11:40 तक क्वेश्चन का आंसर स्कैन करके उसको लेते आना. हार्ड कॉपी भी देख लेंगे, लेकिन आज पहले स्कैन करके भेज देना, ठीक है. चलो, फिर 12 बजे से क्लास भी है, तो अगर पानी ऐसे ही पड़ता रहा तो ऑनलाइन क्लास होगा अकाउंट्स का, ठीक है. ठीक, चलो करो जी अकाउंटिंग. दूसरा Yes. 10 लाख Back. याद है हमारा. जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट होता है तो अब गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में. ओके. Yes. No. Depreciation will be charged on full value of assets, that is on 50 lakh, Yeah. because we have not reduced the value of amount 50 lakh minus salvage value 5 lakh divided by 5, that is 45 divided by 5, yani 9 lakh rupees depreciation will be charged. Depreciation account debit to fixed assets 9 lakh. Okay. Now one more entry is required to do in this case is how much deferred amount government grant credited to P&L account.
Yeah. Yeah. Deferred government account will credited to P&L in proportion to depreciation. Yes. Okay. Now depreciation is 9 lakh per annum fixed, because in straight line method depreciation will not change. Yeah. Okay. Annual depreciation is 9 lakh per annum. Annual depreciation is 9 lakh per, this is remain fixed, because in straight line no change in depreciation amount. This means our proportion is equal proportion. जब अमाउंट 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख न करके ही होगा हर एवरी ईयर, तो जब प्रोपोर्शन उसका बनाइएगा, रेशियो बनाइएगा, तो इक्वल रेशियो आएगा ना. Yeah. ओके. तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट credited to P&L account in equal proportion. लाइफ कितना है हमारा? तो 5 ईयर लाइफ है, तो 5 इक्वल प्रोपोर्शन होगा ये. ठीक है. 9 5. तो अमाउंट ट्रांसफर टू P&L हम लोग यहाँ निकाल लेंगे. अमाउंट ट्रांसफर टू P&L इक्वल टू, ग्रांट हमें मिला 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख. तो 2 लाख रुपीज एवरी ईयर ट्रांसफर टू द P&L account. Now one entry will be deferred government grant account debit to P&L amount 2 lakh. Okay. Yes. Second year, in second year we have to pass only 2 entry. In second year में केवल ये 2 एंट्री आप करोगे बस, एक डिप्रिसिएशन का और एक अमाउंट ट्रांसफर टू P&L account from deferred government grant. Same entry will remain same with same amount. No change. सेकेंड एंट्री, सेकेंड ईयर में यही 2 एंट्री होगा. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, then deferred, second entry will be deferred government grant account debit to P&L, and the amount will remain same, no change. Okay. Yes. लिख ली शिवानी, सेकंड ईयर का एंट्री लिखी? यस सर. हाँ, 2 एंट्री लिखी? लिख लिया सर. दोनों एंट्री लिखी ना? हाँ सर. चलो ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी टाइप का क्वेश्चन होगा ग्रांट में, और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा झमेला. Santosh Limited has received a grant of 8 crore from the government for setting up a factory in that backward area. Out of this grant, the company distributed 2 crore as dividend. Also, Santosh Limited received land free of cost from the state government, but it has not recorded it at all in the books as no money has been spent.
In the light of AS12, examine whether the treatment of both the grant is correct. Okay. दो पार्ट है इसमें. एक 8 करोड़ का जो ग्रांट मिला फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया. ओके. और उसी ग्रांट में से 8 करोड़ में से 2 करोड़ उसने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और सेकंड पार्ट है कि उस गवर्नमेंट ने उसको लैंड भी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट और उसका उसने कोई अकाउंटिंग नहीं किया है. ठीक है. तो ये 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 सिचुएशन है, दोनों का अलग अलग आंसर आपको देना है. फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं पहले. 8 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया. आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज ए डिविडेंड. अभी हम किए थे ऊपर में सेम टाइप का क्वेश्चन था कि अगर बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर रही है तो उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते हैं एज पर AS12. बैकवर्ड एरिया में अगर तो उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट नहीं करते हैं एज पर AS12. तो उसको तो हम गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे ही नहीं. अब वो उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड के रूप में, चूँकि वो गवर्नमेंट ग्रांट अब है नहीं, तो अब उस जैसे उस अमाउंट को यूज करे, ठीक है, एज पर द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो उस फंड को यूज करेगा 8 करोड़ को. उसने कहीं और यूज कर लिया उसको डिविडेंड, ये तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, गलत. ठीक है, रॉन्ग यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. गवर्नमेंट ग्रांट किसी खास पर्पस के लिए मिला था उसको, लेकिन वो 2 करोड़ डिविडेंड में यूज कर लिया, तो ये मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हुआ. तो हम लोग इसका आंसर पहला पार्ट का लिख लेते हैं पहले. एज पर AS12 government grant received for setting up a factory in a backward area is not regarded as government grant. Is not regarded as government grant. But distribution of dividend of rupees 2 crore from the fund is misutilization of fund. Now second part. Santosh Limited received any fixed assets received
free of cost from state government Moment, sir. will be recorded at nominal value. फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हमें मिलता है तो उसे नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड करना पड़ता है। आप Yeah. नहीं रिकॉर्ड करेंगे ऐसा नहीं है। नॉमिनल वैल्यू पे आपको, नॉमिनल वैल्यू का मतलब कुछ भी वैल्यू, एनी अमाउंट यू कैन राइट। सपोज लैंड का वैल्यू एक्चुअल में 1 लाख है, लेकिन हम उसमें उसको 5,000 में रिकॉर्ड करके रख दिए या 1,000 रुपये लिख दिए लैंड के सामने, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मतलब एट एनी वैल्यू। Fixed asset received free of cost from state government will be recorded at nominal value. The treatment made by the company is not correct. ठीक है, जो ट्रीटमेंट कंपनी ने किया है वो करेक्ट नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना होगा किसी न किसी वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। Complete question 5, question number 6, 7, 8. No question 9, 10, 11, 12, बहुत है, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 14 तक है। बहुत सारे क्वेश्चन सेम है, मैं डिफरेंट जो क्वेश्चन होगा ना वो हम देखते हैं हम लोग। ओके, जो एकदम सेम क्वेश्चन होगा, रिपीट है, सपोज वैल्यू चेंज करके केवल, वो तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ backward area which entitles the company to receive the government India subsidy of ₹20% of the cost of investment. Having fulfill all the conditions under the scheme, company on its investment of ₹50 crore in capital asset received ₹10 crore from the government in January 2017 accounting period 16-17. Company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ended 31st March 2017. Keeping in view of the relevant accounting standard, discuss whether this action is justified or not. तो ये क्वेश्चन है आपके पास, 20% के बराबर का ग्रांट कंपनी को मिलने वाला है। टोटल 50 करोड़ का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से 20% निकाल लो आप तो 10 करोड़ रुपए का मतलब ग्रांट मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है कि कंपनी उस ग्रांट को पीएनएल में क्रेडिट करना चाहती है एज ए इनकम, रेवेन्यू इनकम मान रही है, लेकिन ये रेवेन्यू इनकम नहीं होगा। कंपनी हैज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, कंपनी को कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स रिड्यूस करना पड़ेगा। $50 लाख के कॉस्ट को वो 10 लाख से रिड्यूस करेगा, ये होगा इसका करेक्ट ट्रीटमेंट। वो उसको पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का एकदम सिंपल है कि ट्रीटमेंट क्या है ग्रांट का। तो एज पर AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड for
assets either credited to assets account or credited to deferred government grant account. Decision of company to treat it as revenue is incorrect. Incorrect accounting. Top Limited should record government grant either credited to assets account or credited to deferred government grant account. Okay. Yes. Now next question, 7 number. Question number 7. Z Limited 50 lakh which has estimated useful life of 5 years with the salvage value of 5 lakh. On purchase of the asset, government grant it grant 10 lakh. This amount reduced, already यहाँ लिखा हुआ this amount was reduced from the cost of fixed assets. यानी इस 10 लाख से उसने कॉस्ट को घटा दिया. Grant was refundable in the end of second year to the extent of 7 lakh. Pass general entry for refund of grant. अब ओनली रिफंड ऑफ ग्रांट के लिए आपको जनरल एंट्री बोल रहा है. तो क्या करेंगे? सिंपल है, जितना 7 लाख रिफंड किया 7 लाख से कॉस्ट ऑफ एसेट्स को बढ़ा दो. Yeah. Okay. 7 लाख से घटाया था, 7 लाख से बढ़ा दो कॉस्ट ऑफ एसेट्स को. यानी इसका आंसर हो जाएगा सिंपल फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख. बस यही एंट्री बनेगा. नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड. सिंपल है. एंड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स increased.
So first method is that reducing in fixed assets, no? Yeah. Second is deferred Yeah, second grant. is deferred. Second is deferred, and first method is Reducing in fixed assets. reducing fixed assets. लिख लिया जी दीपक? हाँ सर। Question number 8. A fixed asset purchased 20 lakh. Government grant received towards it 8 lakh. Residual value is 4 lakh. Useful life 4 year. Assume depreciation on the basis of straight line method. Asset is shown in the balance sheet. Net of grant. Net of grant means after reducing the grant amount from the cost of assets. This means 8 lakh rupees जो ग्रांट मिला है, 20 लाख टोटल कॉस्ट था, यानी वो यहाँ पर दिखा रहा है 20 माइनस 8, 12 लाख हो गया नेट ऑफ ग्रांट. आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस. 5 लाख का ग्रांट वो वापस कर रहा है, तो जितना ग्रांट वापस कर रहा है उतने से कॉस्ट ऑफ एसेट्स को बढ़ा देंगे, उतने से कॉस्ट ऑफ एसेट्स को हम इंक्रीज करेंगे. पहला एंट्री ये बना देंगे, उसके बाद डिप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करके फिर से उसको डिप्रिसिएशन का एंट्री हम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम पहला एंट्री अगर हम पूरा एंट्री कुछ नहीं लिखा है तो अगर मान लो दोनों साल का करेंगे, फर्स्ट ईयर का भी कर दिया और सेकेंड ईयर का भी एंट्री. क्वेश्चन नंबर 8. तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा बैंक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख. फिर गवर्नमेंट ग्रांट आया उसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख. फिर फिक्स गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख. अब डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा उसका वर्किंग कर लेंगे हम लोग अलग से. डिप्रिसिएशन कॉस्ट हमारा 20 था, उसमें से 8 लाख घटा दिए तो 12 लाख बच गया, माइनस साल्वेज वैल्यू 4 लाख है, लाइफ 4 ईयर दिया है, डिवाइडेड बाय 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2 लाख का डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज होगा. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख. अब फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में उसको रिफंड करना पड़ रहा है 5 लाख. तो जब रिफंड करेगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट बढ़ जाएगा, तो रिफंड का एंट्री पहले करेंगे फिक्स सेकेंड ईयर में. फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख. अब हमारा यहाँ कॉस्ट कितना बच गया, हमारे पास टोटल कॉस्ट 12 लाख था, उसमें से 2 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए. तो अब डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमको 12 लाख में से 2 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए थे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू वहाँ 10 बच रहा था, प्लस इसमें रिफंड हम ऐड कर देंगे 5 लाख का. तो अब हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू हो गया एसेट्स का 15 लाख. ओके, तो अब डिप्रिसिएशन जो लगेगा वो 15 लाख पे लगेगा रिमेनिंग लाइफ पे. 4 ईयर टोटल लाइफ था, उसमें से 1 ईयर तो लैप्स हो गया, तो अब रिमेनिंग लाइफ कितना बच गया 3 ईयर. 15 लाख माइनस साल्वेज वैल्यू इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी 11 डिवाइडेड बाय 3. 3.66. 3.66. तो ये आप डिप्रिसिएशन का एंट्री कर दो. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 3.67 और 66 जो भी लिखो आप, एक ही बात है. तो ये ध्यान रखना है, जब रिफंड के बाद हमें डिप्रिसिएशन निकालना है तो पहले हम निकाल लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा है बिफोर रिफंड.
ये आपको वो निकालना जरूरी है। उसके बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू रिमेनिंग आएगा उसमें रिफंड का अमाउंट ऐड करेंगे तो फिर रिवाइज्ड रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा आपके पास। 15 लाख आया, जैसे इसमें 12 लाख हमारा कॉस्ट था, उसमें 2 लाख डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर चार्ज किए तो 10 लाख बच गया आफ्टर 10 फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकंड ईयर में वो रिफंड कर रहा है, देन आई हैव एडेड 5 लाख रुपीज इन 10 लाख, तो 15 lakh is the revised cost, then 15 minus 4 lakh salvage value divided by remaining useful life. After 1 year the remaining useful life is 3 year, क्योंकि total life 4 year था। 3 से डिवाइड किया तो 3.67 is the amount of depreciation. Okay. Yes. ये रिपीट क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, इसमें कुछ नया नहीं है। WDB वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, है ना, केवल रेट यहाँ अलग है, वहाँ 10% था, यहाँ 20% है, बस इतना ही अंतर है। बाकी सारा क्वेश्चन अमाउंट खाली चेंज किया है, कुछ क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, रिपीट है एकदम। यहाँ पर भी ग्रांट मिला है तो उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से उसने रिड्यूस कर दिया है। ओके, कुछ नया नहीं ना है, बन जाएगा ना जी दीपक? जो हाँ सर बन जाएगा। WDB वाला क्वेश्चन किए थे ना एक अभी, हाँ सर उसी टाइप का है, खाली अमाउंट चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में नया। इसके बाद वाला 10 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, इसमें दोनों तरह से अकाउंटिंग आपको करने बोल रहा है। एक बार ग्रांट क्रेडिट कीजिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा बोलता है ग्रांट क्रेडिट होगा डेफर्ड गवर्नमेंट, दोनों मेथड से बनाने बोल रहा है, बस सिंपल अंतर इतना ही है। एक बार ये मान के बनाइए कि ग्रांट कॉस्ट ऑफ एसेट्स को रिड्यूस हुआ था तो रिफंड का एंट्री क्या बनेगा, आपको केवल रिफंड का ही एंट्री करना है। और अगर ग्रांट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में गया था तो रिफंड का एंट्री क्या बनेगा। तो सेकंड वाला पार्ट हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट पार्ट हम नहीं बताएंगे। फर्स्ट पार्ट अभी किए, ऊपर वाला क्वेश्चन में वही था, रिफंड था अगर कॉस्ट को घटा रहा था तो। सेकंड पार्ट, अगर वो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट करता है तो थर्ड ईयर में वो रिफंड कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। $40 lakh machinery, useful life 4 year, residual value 8 lakh, grant receipt 16 lakh, so the journal entry to be passed at the time of refund in the third year में रिफंड हो रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आपको पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा रिफंड के बाद, आफ्टर रिफंड। द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड। तो सेकंड पॉइंट हम बना रहे हैं आपको कि अगर ग्रांट डेफर्ड अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा रिफंड का। देखिए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हमारा कितना क्रिएट हुआ होगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ये बना होगा 16 लाख रुपीज। इसमें से 2 साल हम PNL में ट्रांसफर किए होंगे इन प्रोपोर्शन टू डिप्रिसिएशन। चूँकि हमारा डिप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड है, 4 ईयर है लाइफ, तो प्रोपोर्शन भी इक्वल ही होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा इक्वल डिप्रिसिएशन होता है, इसलिए प्रोपोर्शन भी इक्वल ही होगा, ठीक है। ट्रांसफर टू PNL इन 4 इक्वल प्रोपोर्शन।
ओके 2 साल वो ट्रांसफ़र किया होगा तो एनुअल ट्रांसफ़र कितना हो रहा है ये निकालना है। एनुअल ट्रांसफ़र टू पीएनएल 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 लाख 4 लाख रुपीज़ वो 2 बार ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल में, यानी पीएनएल में कितना क्रेडिट बचा। पीएनएल कितने अमाउंट टोटल 2 साल में पीएनएल क्रेडिट हो गया 8 लाख से, 4 लाख फर्स्ट ईयर 4 लाख सेकेंड ईयर, 2 बार वो एंट्री कर दिया ट्रांसफ़र करने का। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस कितना बचेगा, जब 16 लाख में से 4 लाख ट्रांसफ़र हो गया तो बैलेंस इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 लाख। ठीक है, और टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल जो हुआ ड्यूरिंग द 2 ईयर 4 + 4 सॉरी यहाँ 8 होगा, ये 16 माइनस 8 होगा, इसको 8 कर लेंगे हम लोग। तो 8 लाख हमारा पीएनएल में क्रेडिट हुआ है और 8 लाख बैलेंस बचा हुआ है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में, क्योंकि 2 ही बार हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं, 3rd ईयर में रिफंड हो रहा है। तब एंट्री क्या बनेगा रिफंड का हमारा, तो रिफंड का एंट्री बनेगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट $8 लाख पीएनएल अकाउंट डेबिट 8 लाख और टू बैंक 16 लाख, ये एंट्री बनेगा रिफंड का। क्योंकि हम फिक्स एसेट्स का इसमें कोई चेंज नहीं होता है वैल्यू, जब डेफर्ड अकाउंट में जाता है तो फिक्स एसेट्स रिमेन एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट घटा ही नहीं रहे हैं फिक्स एसेट्स को। ठीक है, इसलिए फिक्स एसेट विल रिमेन एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए रिफंड का एंट्री में भी फिक्स एसेट्स का कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना है आपको। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जो बैलेंस था उसको डेबिट कर दिए और पीएनएल में जितना क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दिए, और टू बैंक आपका टोटल रिफंड का अमाउंट, ये जनरल एंट्री रिफंड का बनेगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 11 नंबर भी सेम है उसी टाइप का। क्या है देखिए, सुप्रिया लिमिटेड रिसीव ए ग्रांट ऑफ 25 लाख ड्यूरिंग द ईयर 15-16 फ्रॉम ए गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉय। The grant prescribed condition for its utilization. However, during the year 2016-17, it was found that the condition of grant were not complied with, and the grant had to be refunded to the government in full. अब ये कंपनी के एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड ग्रांट था। कंपनी ने ग्रांट रिसीव किया, उसके बाद उसका कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो कंपनी हैज़ टू रिफंड द ग्रांट। तो वेलफेयर मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए ग्रांट आया। ग्रांट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, तो इन दिस केस ग्रांट विल be treated as revenue income. If any grant received for meeting the revenue expenses, it will treated as a revenue income. It will directly credited to the P&L account. And at the time of refund, again this will be debited to the P&L account. क्योंकि दोनों इसमें आपको दिया हुआ है कि ग्रांट रिसीव हुआ, बाद में रिफंड भी करना पड़ा उसको। तो आंसर हमारा यही होगा, एज पर AS 12
government grant to meet employee welfare is treated as revenue receipt and credited to P&L account at the time of refund. It will be debited to P&L अकाउंट. तो रिफंड का अगर एंट्री अगर हमसे पूछेगा तो P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक. Question number 12. D Limited acquired a machine on 1st April 2012. 20 lakh. The useful life is 5 years. Company had applied rupees 1,4,2012 for a subsidy to the tune of 80% of the cost. Sanction letter for subsidy was received in November 15. Company's fixed assets account for the financial year 15-16 show a credit balance as under. Particular machine original cost 20 lakh less accumulated depreciation from 12-13 to 14-15 on straight line method rupees 12 lakh. लाख रिमेनिंग बच रहा है लेस गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख. बैलेंस 8 लाख नेगेटिव में दिखा रहा हूं क्योंकि उसको ग्रांट बाद में मिला है. ग्रांट 1/4/2012 को ही उसने मशीन को परचेज कर लिया था 20 लाख में. मशीन उसने 20 लाख में 1/4/2012 को ही परचेज कर लिया. और उस समय सर आवाज नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा सर. मैं तो ऑफ करने बोलिए तो. और माइक मेरा तो लगता ऑन है. मेरा गड़बड़ है क्या? अभी ठीक है सर. अभी ठीक है. ठीक है. अच्छा तो ये आपका जो है 1 अप्रैल 2012 को मशीन परचेज कर लिया गया था 20 लाख में. 5 लाख मशीन का 5 ईयर मशीन का लाइफ है. क्वेश्चन में गिवन है 5 ईयर इज अ लाइफ. ओके.
कंपनी ने सब्सिडी के लिए, ग्रांट के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट के पास, इक्वल टू द 80% ऑफ द वैल्यू। ग्रांट लेटर जो है उसको रिसीव हुआ नवंबर 15 में। दिक्कत ये आ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में ग्रांट जो रिसीव हुआ है उसको ग्रांट का लेटर, ग्रांट का जो लेटर यानी अप्रूवल लेटर आया है वो नवंबर 2015 को आ रहा है, और जो ग्रांट उसको मिल गया पूरा 80% के बराबर यानी 16 लाख का ग्रांट उसको मिल रहा है नवंबर 15 में। लेकिन कंपनी तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दी शुरू से ही, 12-13 लगा, 13-14, ठीक है, और 14-15 3 साल का डिप्रिसिएशन लग गया मशीन पे। तो जब 3 साल का डिप्रिसिएशन लग रहा है मशीन पे, 20 लाख का ऑलरेडी वैल्यू था शुरू में, और लाइफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ईयर। तो डिप्रिसिएशन हम लोग 12-13 में लगा दिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो 4 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया। तो इस तरह से 4 लाख 3 बार उसने चार्ज कर दिया डिप्रिसिएशन, 16 लाख, फिर डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया 13-14 का 4 लाख, क्योंकि ग्रांट उसको लेट में मिला है, 15 में मिला है, 15-16 में जाकर। फिर डिप्रिसिएशन उसने 14-15 में भी चार्ज कर दिया 4 लाख। तो अब उसके पास वैल्यू बच गया 8 लाख। अब यहाँ जाके उसको ग्रांट मिल रहा है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव में दिखा रहा है 8 लाख। क्वेश्चन है कि आप क्या वो डील कैसे करेगा, अब इस ग्रांट को कैसे वो अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। ग्रांट को अकाउंटिंग 16 लाख को वो कॉस्ट ऑफ एसेट से घटाए या नहीं घटाए, ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ ग्रांट वैल्यू ऑफ एसेट इज ओनली 8 लाख। अगर वो घटाएगा अभी, ठीक है, तो उसका जो है हमारा कॉस्ट नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करेंगे हम फर्स्ट मेथड नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड यहाँ अडॉप्ट ही नहीं कर सकते हैं ग्रांट का अकाउंटिंग करने के लिए, हमको सेकंड मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मेथड यानी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और 2 साल अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, 2 साल रिमेनिंग है, 5 साल टोटल लाइफ था, 3 ईयर अभी लैप्स हुआ है, तो 2 साल में हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से अकाउंटिंग नहीं हो सकता है इस सिचुएशन में, तो हम लोग का आंसर वहाँ से शुरू होगा। ये तो जस्ट मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि 8 लाख बचा हुआ कैसे दिखा रहा वो, अब आंसर यहाँ से मेन शुरू होगा हमारा। गवर्नमेंट ग्रांट received ₹16 lakh on November 2015 has to credited to deferred government grant account ठीक है। It should not credited to assets account. Deferred government grant account credited to P&L account in remaining 2 year
in remaining 2 year in equal proportion. So rupees 8 lakh of government grant credited to P&L account in each of 2 year. ठीक है, तो ये होगा अकाउंटिंग. हम उसको एसेट से घटा देंगे तो नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है एसेट्स, वो गलत अकाउंटिंग हो जाएगा. फर्स्ट मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, सेकंड मेथड से ही अकाउंटिंग करना होगा इस सिचुएशन में. क्लियर? लिख लिए? हाँ सर लिख लिए. चलो हो गया. ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए और क्वेश्चन बचा. ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग ना दोनों बना लेना, ठीक है ना. वो सिचुएशन का चेंज करके व्हाट टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, अगर डिडक्ट कर दिया, अगर क्रेडिट कर दिया, तो कुछ नया नहीं है इसमें. दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का हमको लग रहा है, ठीक है ना. अगर पहला में वही है, दूसरा में तो भी वही लिख रहा है. हाँ, कुछ नया नहीं है. ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड है कि अगर वो घटा दिया तो क्या होगा, अगर वो डिफर्ड में चला गया तो क्या होगा. इसीलिए कुछ हमारा नया चीज़ नहीं है, ठीक है ना. तो ये आप बना के देखिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो हम उसको बता देंगे. ओके. तो चलो अभी इतना ही. फिर हम आज इवनिंग में फिर से क्लास लेंगे तो AS 16 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. AS 16. Okay, sir.